नमस्कार, पंजाब डिबेट में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी और पंजाब डिबेट्स में आज बात करेंगे सत्ता के सेमीफाइनल की। अगले साल विधानसभा चुनाव का रण होगा, लेकिन उससे पहले सत्ता के सेमीफाइनल पर जिक्र करेंगे आज। दरअसल पंजाब में स्थानीय निकाय चुनाव की बात होगी। पंजाब में 8 नगर निगम, 109 नगर काउंसिल और नगर पंचायतों के लिए कल वोटिंग होने जा रही है और साल 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले हो रहे इन चुनाव में जीत दर्ज करने के लिए सभी सियासी पार्टियों ने एडी चोटी का जोर लगा दिया है। पंजाब डिबेट्स में आज चर्चा करेंगे कि क्या ये स्थानीय निकाय चुनाव साल 2022 में पंजाब में होने वाले विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल साबित होगा। क्या इन चुनाव के नतीजे 2022 विधानसभा चुनाव की तस्वीर तय करेंगे और क्या किसान आंदोलन का असर भी इस चुनाव पर दिखेगा, सवाल ये भी है। तो पंजाब में 8 नगर निगम, 109 नगर परिषद और नगर पंचायतों के लिए कल सुबह 8 बजे से मतदान शुरू हो जाएगा और चुनावी अखाड़े में 9,222 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। 8 नगर निगमों के लिए 400 और 109 नगर परिषदों और नगर पंचायतों के लिए 1,902 सदस्य चुने जाने वाले हैं। ये रिपोर्ट देखिए। पंजाब नगर निकाय चुनाव के लिए तैयार है। प्रदेश में 14 फरवरी से 8 नगर निगमों, 109 नगर परिषदों और नगर पंचायतों के लिए सुबह 8 बजे से मतदान शुरू होगा। वोटिंग की प्रक्रिया शाम 4 बजे तक जारी रहेगी। शाम 4 बजे तक जो मतदाता लाइन में लग जाएंगे वो वोट डाल सकेंगे। नतीजे 17 फरवरी को आएंगे। सत्ता का सेमीफाइनल माने जा रहे इस चुनाव में 9,222 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। कांग्रेस की ओर से 2,037 उम्मीदवार, शिरोमणि अकाली दल ने 1,569, आम आदमी पार्टी ने 1,106, बीजेपी ने 1,003 और निर्दलीय उम्मीदवारों की संख्या 2,832 है। 8 नगर निगमों के लिए 400 और 109 नगर परिषदों, नगर पंचायतों के लिए 1,902 सदस्य चुने जाएंगे। वोटिंग के लिए पोलिंग पार्टियां पहुंचना शुरू हो गई हैं। प्रदेश भर में सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। जगह जगह नाकेबंदी हुई है। पुलिस की ओर से मार्च भी निकाला जा रहा है। राज्य चुनाव आयोग और प्रशासन की ओर से निष्पक्ष और निर्भीक चुनाव कराए जाने का भरोसा दिया जा रहा है। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁੱਲ 56 ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਸ ਹੈ। 56 ਦੇ 56 ਦੀਆਂ ਪੋਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਾਜ਼ਰੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਵਾ ਰਹੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਅਸੀਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇ ਕੇ ਆਦੇ ਰਿਸਪੈਕਟਿਵ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਸ ਵਾਸਤੇ ਵਿਦਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਸਸ ਤੇ ਰੈਕੁਇਜ਼ਿਟ ਜਿਹੜਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਰ ਇੱਕ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਫ੍ਰੀ ਐਂਡ ਫੇਅਰ ਪੋਲਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵੀ ਮੱਦੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸਕ, ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਤੇ ਵਗੈਰਾ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਲਈ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਬਣਾਏ ਨੇ ਬੂਥ। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਪਾਇਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਣਾਈ ਪਈ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ ਚੜਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਲੈਬ ਬਣੀ ਹੋਈ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਾਰਡ ਵਾਈਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਗੇ, ਪਲੱਸ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਬੂਥ ਬਣੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੈਨਾਤ ਨੇ ਤੇ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦੂਰ ਤੋਂ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪੂਰੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਬੜੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਨਾਕਾਜ਼ ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਟੀਮਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮੂਵ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਰਾਂਗੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਨਟੇਨ ਰਹੇ। ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਲੈਣ, ਪਰ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੋ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਅਫੈਂਸਿਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਨੇ, ਵੀ ਵਿਲ ਨਾਟ ਹੈਜ਼ੀਟੇਟ ਟੂ ਅਟਰੈਕਟ ਦੋਜ਼ ਸੈਕਸ਼ਨਸ ਅਗੇਂਸਟ ਦੀ ਵਾਇਲੇਟਰਸ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ ਇਸ ਸਾਰੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਕੋਈ 1200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਜੋ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਡੂਜ਼ ਐਂਡ ਡੋਂਟਸ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ।
ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਈਟਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੇਣਾ, ਕਿਸੇ ਝੋਲਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬੀਬੀ ਆਪਦਾ ਪਰਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਹੋਏਗੀ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਆਈਟਮ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ, ਲਾਈਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਾਚਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਰੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੂਚਨਾ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਕੈਮਰਾਜ਼ ਹੈਗੇ ਆ ਜੋ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਸੋ ਵੀ ਵਿਲ ਨਾਟ ਅਲਾउ ਦੋਜ਼ ਆਈਟਮਸ ਟੂ ਗੋ ਇਨਸਾਈਡ ਦੀ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ। इन चुनावों में करीब 39,15,280 वोटर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। पुरुष मतदाताओं की संख्या 20,49,777 है, जबकि महिला मतदाताओं की संख्या 18,65,354 है। वोटिंग के लिए 4,102 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। 18,000 कर्मचारियों को चुनावी ड्यूटी पर लगाया गया है। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, इंडिया न्यूज पंजाब। पंजाब नगर निकाय चुनाव तो 14 फरवरी को यानी कि रविवार को सुबह 8 बजे से मतदान शुरू हो जाएगा। 109 नगर परिषदों के लिए मतदान होगा। सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक मतदान किया जाएगा। तो सुबह 8 बजे से मतदान शुरू हो जाएगा और शाम 4 बजे तक जो लोग पोलिंग बूथ्स पहुंच जाएंगे उनको मतदान करने की परमिशन मिलेगी। 9,222 उम्मीदवार चुनावी मैदान में है जो अपनी किस्मत आजमा रहे हैं और जनता इनकी किस्मत का फैसला करेगी। सत्ताधारी कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवारों का ऐलान किया गया। 2,000 से ज्यादा प्रत्याशी उतारे गए। शिरोमणि अकाली दल की तरफ से 1,569 प्रत्याशी घोषित किए गए थे और आम आदमी पार्टी भी इस चुनाव में अपनी किस्मत आजमा रही है। बीजेपी ने भी ताकत झोंकी, लेकिन निर्दलीय उम्मीदवारों की संख्या भी 2,000 से ज्यादा है। ये भी एक बड़ा फैक्टर साबित हो सकता है। कई बड़े मुद्दे इस चुनाव में देखने होंगे कि आखिर किसान आंदोलन का कितना असर पड़ता है, ये भी एक बड़ा सवाल है। चलिए, बठिंडा से ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ अमनदीप जुड़ चुके हैं और इसके साथ साथ मोहाली से हमारे साथ कनेक्ट हो चुके हैं अरुण आहूजा। अरुण, सबसे पहले आपके पास आएंगे। फिलहाल मोहाली में क्या तैयारियां हैं? कल सुबह 8 बजे से मतदान शुरू हो जाएगा। तैयारियों को कितना पुख्ता किया जा रहा है? मॉनिटरिंग के लिए क्या व्यवस्था वहां पर की गई है? जी आयुष, ਅਸੀਂ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਖੇਡ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਇਸ ਖੇਡ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਗੇਟ ਤੇ ਜਿਹੜੇ 2 ਕਰਮਚਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਲਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਬੂਥ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਆਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰੰਤੂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਦੱਸੇ ਗਏ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ 2 ਮੁੱਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਥਰਾਅ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਤੇ ਥੁੱਕਿਆ ਵੀ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਦਰਜ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਪਰੰਤੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਜੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸਖਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਵਲਨਸ਼ੀਲ ਪਦਾਰਥ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਮਾਸਕ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੀੜ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵੀ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 100 ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਲਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਪਰੰਤੂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਸਪੀ ਵਗੈਰਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤੈਨਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। जी आयुष, बने रहिए आप। अमनदीप आपका फिलहाल बठिंडा में क्या तैयारियां की गई हैं? कल सुबह 8 बजे से मतदान शुरू हो जाएगा, क्या खास इंतजाम है? और जिस तरह से अरुण ने संवेदनशील बूथ का जिक्र भी किया है, इसको लेकर क्या खास इंतजाम दिख रहा है जो बूथ संवेदनशील हैं वहां पर?
उम्मीदवार हैं वो 287 हैं अलग अलग पार्टी से जो इस चुनाव में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिनके द्वारा इस चुनाव में भाग लिया जा रहा है, जिनमें अकाली दल, कांग्रेस और आप और कुछ निर्दलीय उम्मीदवार भी है जिनके द्वारा जो है जहां इस चुनाव में भाग लिया जा रहा है। बड़ी बात जहां सामने आ रही है भी कुछ संवेदनशील जो बूथ बताए गए हैं वहां पे पुलिस अधिकारियों द्वारा लगातार सर्च की जा रही है। वहां पे बकायदा जो कैमरा मैन तैनात किए गए हैं ताकि कोई अनसकामी घटना सामने ना आए। बड़ी संख्या में पुलिस कर्मचारी भी वहां पे तैनाती की गई है। वहीं पुलिस अधिकारियों का कहना है भी कोई भी जो बैड एलिमेंट है उनको जो है किसी भी तरह की कोई भी कार्रवाई करने नहीं दी जाएगी। अगर कोई भी व्यक्ति कानून हाथ में लेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जी इसके अलावा मनदीप ये भी बताइए कि सेंसिटिव बूथ का आपने जिक्र किया, लेकिन कोविड के काल में चुनाव कराना भी सबसे बड़ी चुनौती है। हालांकि कई राज्यों में चुनाव हमने देखे, लेकिन पंजाब में निकाय चुनाव में क्या खास इंतजाम किए जाएंगे? सैनिटाइजेशन को लेकर क्या व्यवस्था वहां पर होगी और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन वोटर्स करें, इसके लिए किस तरह से उन्हें समझाया जाएगा, जागरूक किया जाएगा? कुछ बताना चाहेंगे, कोविड को लेकर पहले ही प्रशासन द्वारा पुख्ता प्रबंध कर लिए गए थे। जहां पे जो पोलिंग एजेंट थे उनकी 2 दिन की ट्रेनिंग लगाई गई थी, जहां पे उनको ईवीएम के साथ साथ कोविड से बचने के लिए भी जो है हदायतें दी गई थी। उनको सैनिटाइजर, फेस मास्क आदि का प्रबंध कर दिया गया है। उनकी ट्रेनिंग के दौरान उन्हें उनकी जो यूजिंग है उसकी वस्तुआ उसके बारे में भी जो जानकारी दी गई है। आप पीछे तस्वीरें देख सकते हैं, बड़ी संख्या में एक पोलिंग बूथ पर पुलिस कर्मचारी खड़े हैं। प्रशासन द्वारा आरंभ कर दी गई हैं। पोलिंग बूथ है लोगों की अमनदीप आपकी आवाज नहीं आ रही है जी। हाँ कहिए। फेस मास्क की वर्तों की जी बताइए। आयुष सुन पा रहे हैं आप मेरी बात? जी अमनदीप बताइए। हेलो अमनदीप हम सुन पा रहे हैं, दर्शक सुन पा रहे हैं आपको, बताइए जिस तरह से आप जानकारी दे रहे थे खास इंतजामों को लेकर। जी बिल्कुल, वहीं दूसरी ओर जो कुछ विरोधी जगह सियासत में सरगर्म है, अकाली दल और आम आदमी पार्टी द्वारा कुछ जो सत्ताधारी धड़े पर उस पर इल्जाम भी लगाए गए हैं, भी इनके द्वारा धक्केशाही की जा रही है और कुछ जो सप्लीमेंट्री वोट तैयार की गई है उनको लेकर भी आज बठिंडा में काफी हंगामा हुआ है। आम आदमी पार्टी और श्रोमणी अकाली द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बकायदा चुनाव अधिकारियों पर सत्ताधारी पक्ष का जो है पक्ष लेने की बात कही जा रही है। उनके द्वारा कहा जा रहा है भी सत्ताधारी धड़े द्वारा चुनाव कमीशन को गुमराह किया जा रहा है ताकि वह अपने जो हैगा वोट में अपना कामयाब हो सके। जी साथ साथ अमनदीप वक्त क्या होगा? जो 8 बजे से लेकर 4 बजे तक का वक्त निर्धारित किया गया है, इस वक्त में जो लोग पहुंच जाएंगे उनको इजाजत दी जाएगी। सेंसिटिव बूथ पर जो इंतजाम किए गए हैं उसके बारे में आपने जानकारी दी, लेकिन इस चुनाव में हमने ये भी देखा कि बीजेपी के लोग लगातार सरकारी मशीनरी पर शक जाहिर कर रहे थे। ये आश्वस्त कैसे किया जा रहा है प्रशासन की तरफ से कि इसको लेकर जो प्रत्याशी हैं, जो पार्टियां हैं, वो पूरी तरह से आश्वस्त रहें, उसमें कोई शक या सुबह न रहे? जी बिल्कुल, अवश्य बताना चाहेंगे भारतीय जनता पार्टी द्वारा इस इलेक्शन को रोकने के लिए राज्यपाल से मुलाकात भी की थी। इसी दौरान जो है उनके द्वारा यह बात कही जा रही थी कि किसानों की आड़ में कुछ सत्ताधारी लोगों द्वारा उन पर हमला किया जा रहा है, उनको चुनाव प्रचार के लिए रोका जा रहा है। इसी के चलते जिला पुलिस प्रशासन द्वारा इन उम्मीदवार जो भारतीय जनता पार्टी के इस चुनाव में भाग ले रहे हैं उनको बकायदा सिक्योरिटी का प्रबंध किया गया था, जिसमें मेल और फीमेल दोनों ही बॉडीगार्ड उन्हें उपलब्ध कराए गए थे, जिनके पास हथियार आदि की जो सहूलत थी वो भी दी गई थी। जी आयुष। अरुण, यहाँ पर यानी कि मोहाली में भी इस तरह के क्या प्रबंध दिख रहे हैं? जिस तरह से बठिंडा में जानकारी दी अमनदीप ने कि बॉडीगार्ड्स उपलब्ध कराए गए हैं सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से दरअसल, ताकि बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं उनको सिक्योरिटी से जुड़ी कोई समस्या न हो। अरुण सुन पा रहे हैं आप हमें? जी बिल्कुल जी बीते दिन ਜਿਹੜਾ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤਿਆਸ਼ੀ ਦੇ ਹਸਬੰਡ ਨੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਲਈ ਸੀਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਨਿਰਵਿਘਨ ਹੋ ਸਕੇ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਲਾਅ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੰਗਾਮਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਆ ਹਲਕੇ ਦੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਆਪਣੇ
ਤੇ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਨੇ, ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅੰਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੰਗਾਮਿਆਂ ਤੋਂ भी बचा जा सके। जी आयुष। अरुण, इसके अलावा मॉनिटरिंग किस तरह से की जाएगी? जो बूथ्स हैं वहां पर पारदर्शी तरीके से मतदान हो, कोई दिक्कत ना हो, उसके लिए मॉनिटरिंग की क्या व्यवस्था की गई है? जी फिलहाल बीते दिन तक ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਉਂਗਲ ਚੱਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੁਣਾਵ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਉਂਗਲ ਚੱਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਬਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈਗੀ ਆ ਉਸ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਰੰਤੂ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਰਸਨਲ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵਧੀਕੀ नहीं की जाएगी, अमन अमान के नाल पारदर्शिता के नाल जिहड़ी चोण प्रक्रिया होगी। चलिए अरुण, बहुत शुक्रिया आपका। मनदीप, आपका बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी आपने दर्शकों तक पहुंचाई। तो साल 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव से ठीक पहले पंजाब में स्थानीय निकाय के चुनाव हो रहे हैं और सत्ताधारी कांग्रेस हो या फिर विपक्षी पार्टियां, सभी इन चुनाव में मिशन 2022 ढूंढ रही हैं और अपनी अपनी जीत का दावा भी लगातार किया जा रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। फरवरी को पंजाब में 8 नगर निगमों और 109 नगर काउंसिल और नगर पंचायतों के लिए वोटिंग होनी है। 2022 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले हो रहे इन चुनावों में जीत के लिए सत्ताधारी पार्टी कांग्रेस हो या फिर विपक्षी पार्टियां, सभी ने एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है। दरअसल इन चुनाव को सत्ता का सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है। कांग्रेस जहां विकास का दावा कर न सिर्फ इन चुनाव में जीत का दावा कर रही है, बल्कि 2022 में वापसी की हुंकार भी भर रही है। वहीं विपक्षी पार्टियां सरकार पर वायदा खिलाफी और विकास को ठप करने का आरोप लगा रही हैं। पंजाब में आम आदमी पार्टी अपनी जीत और अगले साल अपनी सरकार का दम भर रही है, तो वहीं शिरोमणि अकाली दल अपनी सरकार आने का भरोसा जनता को दे रही है। बड़ा भरवा हंगारा कांग्रेस पार्टी ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ और पूरे पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ जो रुझान है वो कांग्रेस पक्षी है। ਲੋਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਇਸ ਲਈ ਖੜੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜੀ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਕਸ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਭਰਵਾਂ ਹੰਗਾਰਾ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਧਾ ਸੁਨੇਹਾ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਧੱਕਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਕਸ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ, ਉਹ ਧੱਕਾ ਚੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬਾਈਕਾਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਬਾਰਤ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰਚੀ ਸੀਗੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰਚੀ ਸੀਗੀ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਖਾਤਮਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪਸੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੋਕ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਵਰਕਰ, ਸਾਡੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਔਰ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਕਿ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਊਗੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ, ਬੀਜੇਪੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਤੈਅ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਫਾਇਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਅਗਲੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੂਗੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੂਗੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੂਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਥੱਲੇ ਟੀਮ ਆਪਣੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਸਾਡੇ ਐਮਸੀ, ਸਾਡੀ ਕਮੇਟੀ, ਸਾਡਾ ਐਮਐਲਏ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਚਿੰਤਾ ਲਾ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਫਰਕ ਦੇਖੋਗੇ, ਹਲੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਲੇ ਵੀ ਪਛਾਣ ਆਉਂਦੀ, ਫਿਰ ਹਲੇ ਬੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਬੜਾ ਹੋਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਬੜਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਹੋਰ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ 1 ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕੌਣ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਣਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਡਰਾਵਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਦਬਕੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਬਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਗਰਵਾਦ ਸੀਗਾ, 23 ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਮਰੇ ਸੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 117 ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਵੀ ਲੜੀ ਸੀ, 13 ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਲੜੀ ਸੀ।
मौजूदा नगर निकाय चुनाव में स्थानीय मुद्दों के साथ साथ कानून व्यवस्था बड़ा मुद्दा रहा है। विपक्षी पार्टियों की ओर से न सिर्फ पंजाब पुलिस बल्कि पंजाब चुनाव आयुक्त पर भी राज्य सरकार और कांग्रेस के इशारे पर काम करने के आरोप लगाए गए हैं। बीजेपी की ओर से आरोप लगाए गए हैं कि कांग्रेस किसान आंदोलन की आड़ में बीजेपी नेताओं के खिलाफ साजिश रच रही है। हालांकि विपक्षियों के आरोपों को कैप्टन सरकार की ओर से खारिज किया जा रहा है। कभी भी जिवें तुहाडे सामने कहा कभी भी इहो जिहा हथकंडिਆਂ ਦਾ नहीं करदी। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲੁੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਈਏ ਕਦੋਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਈ ਲੜੇ ਹੋਏ ਪਰ ਓਵਰਆਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 99.9% ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗਲਤ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਐਸਐਚਓ ਦੀ ਸਾਡੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੇ ਰਾਤ ਦੇ ਘਰੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਧਮਕਾਉਂਦੇ ਸਾਡੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਂਦੇ ਆ। ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਸੇਲ ਟੈਕਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਸਾਰੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਚੈਕਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਫਿਰ ਡਰਾਮਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਰਲਿਆ। ਸਟੇਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਰਕਰ ਉਹਨੂੰ ਮੋਹਰ ਲਾ ਰਿਹਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਰਕਰ ਬਣ ਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਰੋਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਹੈ। ਐਜ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡਿਸਮਿਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੁਣਾਵਾਂ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੀ ਹਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁੰਡਾ ਰਾਜ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਔਰ ਸੰਰਕਸ਼ਣ ਦੇ ਰਹੀ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਕੈਰੋ ਸ਼ਾਹੀ ਗਿਆਨੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਆਪਾਤਕਾਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀਆਂ ਜੇਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕੀਆਂ ਔਰ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੁਚਲਣ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਓ। 2022 विधानसभा चुनाव से पहले हो रहे नगर निकाय चुनाव वाकई में पंजाब की राजनीति के लिहाज से काफी अहम है। नए कृषि कानूनों के विरोध में चल रहे किसान आंदोलन के दौरान पंजाब में पहली बार शहरों कस्बों में चुनाव हो रहे हैं। क्या इन चुनाव से 2022 के लिए चुनावी राह निकलेगी? क्या इन चुनाव पर किसान आंदोलन का असर पड़ेगा? ये भी 17 फरवरी को साफ हो जाएगा। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, इंडिया न्यूज पंजाब। चलिए अब आपको सवालों से रूबरू करा दें। सबसे बड़ा सवाल यही कि क्या पंजाब में स्थानीय निकाय चुनाव से 2022 का रास्ता पार्टियां निकाल पाएंगी? सवाल नंबर 2, क्या पंजाब में स्थानीय निकाय चुनाव स्थानीय मुद्दों पर ही लड़ा जा रहा है? क्या पंजाब में स्थानीय निकाय चुनाव पर किसान आंदोलन का असर पड़ेगा? कई सवाल हैं। सबसे बड़ा सवाल यही कि जिस तरह से किसान आंदोलन का सबसे बड़ा असर पंजाब में दिखा है, उस किसान आंदोलन का असर इस निकाय चुनाव में भी पड़ेगा क्या? और क्या इस निकाय चुनाव से 2022 यानी कि विधानसभा चुनाव का रास्ता पार्टियां निकालेंगी? क्या पंजाब में स्थानीय निकाय चुनाव में स्थानीय मुद्दों तक ये चुनाव सीमित रहेगा या फिर किसान आंदोलन जैसे मुद्दों का भी असर इस चुनाव में पड़ने वाला है? लगातार आरोप भी लग रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हमारे साथ राजेंद्र भंडारी जुड़ चुके हैं। राजेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। सबसे पहला सवाल आपसे यही कि आखिर जिस तरह से आप लोगों ने आरोप लगाया, आप लोगों को उसके बाद सिक्योरिटी भी दी गई है कई जगहों पर, उसके बाद कल जब जनता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने निकलेगी, उस जनता से वोट की उम्मीद कितनी आपको है? देखिए जी, पहले बात तो आप समझ लीजिए, इस इलेक्शन की रिगिंग पहले दिन से हो गई। आप देखिए, यहाँ जीरा की म्युनिसिपैलिटी है, उसमें 18 सीट्स हैं और 18 के 18 सीट्स पर ना अकाली दल को, ना आपको, ना भारतीय जनता पार्टी या एक भी नामांकन पत्र भरने नहीं दिया। हम 18 में से 15 लड़ रहे थे, 15 के 15 के नामांकन पत्र भरने ही नहीं दिए। यही नहीं, यही हाल इन्होंने फिरोजपुर में किया। दूसरे ढंग से फिरोजपुर, गुरदासपुर, अजनाला, इसके साथ साथ बटाला, वहां पर 10-10, 15-15, 8-8, 5-5 नामांकन पत्र रिजेक्ट कर दिए। अरे समझ नहीं आता, अगर प्रदेश में बाकी म्युनिसिपैलिटीज में हमारे लोग नामांकन पत्र भर रहे हैं,
हम एक बड़े ऑर्गेनाइज्ड पार्टी हैं, हमारे वकील लोकल सही ढंग से भरते हैं, ऐसे कैसे हो सकता है? पहले जीडे का जवाब दें। अभी जो कह रहे थे मेरे एक साथी खासकर अकाली दल के कि इलेक्शन कमीशन तो स्पाइनलेस हो गया। यहाँ इलेक्शन कमीशन की आंखों पर पट्टी बनी हुई है कि जीरा में 18 के 18 सीटों पर यूनानिमस हो गया, कांग्रेस जीत गई और अकाली दल और आप और बीजेपी का एक नामांकन पत्र भी भरने नहीं दिया। अरे आप क्या कर रहे हैं? फिरोजपुर जैसे शहर में हमारे आज जो है सॉरी जनाला में 15 में से 14 रिजेक्ट कर दिए नामांकन पत्र, बटाला में 8 कर दिए, गुरदासपुर में 8 कर दिए। ये तो इलेक्शन कहाँ लड़ा जा रहा है? इसकी रिगिंग तो हो गई, इसका तो लिखा गया जो लिखना था। इसलिए झंडा झुंडा तो छोड़िए, उन्होंने जो गुंडागर्दी का खेल रचना था पूरा रच दिया। एक पंजाबी में हमारे शब्द कहते हैं, एक लाइन कहते हैं, कुत्ती चोरों के साथ मिल गई। इलेक्शन कमीशन, एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस, सरकार का हर अदारा इन कांग्रेसियों के साथ मिल गया और सारे का सारा इलेक्शन जो है उन्होंने रिगिंग उसकी कर दिया। इससे ज्यादा क्या कहें? राजेंद्र भंडारी जी, लेकिन इस तरह से तो हर चुनाव में विपक्ष की तरफ से इस तरह के सवाल उठाए जाते हैं। अगर ऐसा है तो फिर आपकी तरफ से अगला कदम क्या होगा? क्या आप लोग इसे चैलेंज करेंगे, कोर्ट ले जाएंगे, क्या होगा? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि ठीक है, मेरी बात सुन लीजिए राजीव जी, कल जनता वोट करने जा रही, बीजेपी के प्रत्याशी कई जगह पर स्टैंड भी कर रहे हैं, प्रत्याशी खड़े हैं, चुनाव प्रचार भी उन्होंने किया। उनके लिए भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड क्या है? आप कह रहे हैं कि कांग्रेस सरकार ने मशीनरी का इस्तेमाल किया, चुनाव आयोग का इस्तेमाल किया, लेकिन जो प्रत्याशी फिलहाल जमीन पर है, जिसने लगातार प्रचार किया है, उसके लिए पार्टी स्टैंड क्या ले रही है? अरे भाई, वो तो मैं भी प्रचार में शामिल हूँ। प्रचार तो हम कर रहे हैं, यहाँ हमें लड़ने का मौका मिल रहा है, हम लोगों के सामने इनका पर्दाफाश कर रहे हैं, इनको एक्सपोज कर रहे हैं, ये अलग बात है। लेकिन जिस ढंग से इस लेवल की रिगिंग पंजाब में मैंने कभी नहीं देखी। थोड़ी बहुत होती थी, हर कोई पार्टी आती थी, लेकिन पार्टी सत्ता पक्ष में यहाँ तो नगारा बजता था कांग्रेस का या अकाली दल का। बीजेपी ने कभी इस चीजों में हम विश्वास नहीं रखते। ऑल इंडिया की पार्टियां आप देख सकते हैं, ऐसा कहीं भी नहीं होता हमारी तरफ से, लेकिन इनका चलता रहा है। इस बार तो सारे रिकॉर्ड खत्म हो गए, बिल्कुल स्पाइनलेस कह रहा हूं मैं। द इलेक्शन कमीशन डजंट हैव लेग्स टू स्टैंड। पुलिस जो है मूक दर्शक है और किसानों के झंडे उठाकर मुझे शब्दावली में नीचे उतरना पड़ रहा है, लेकिन इससे बेहतर शब्द मैं नहीं इस्तेमाल कर सकता। किसानों के झंडे उठाकर कांग्रेसी गुंडों ने हमारे अनेकों ही पार्टी कैंडिडेट को डराया, उनको कई बार कंटेस्ट से भगाया और हमने तो दोबारा उन सीटों को अनाउंस करना पड़ा। 5-7% हमारे ऐसे कैंडिडेट थे जो चले गए। तो राजन जी, इन तमाम कोशिशों के बाद आपको उम्मीद कितनी है जीत के लिए? शहर की सरकार में आपके प्रत्याशी जीतेंगे, इसकी उम्मीद है या नहीं है? बिल्कुल है, क्योंकि आफ्टर ऑल साइलेंट वोटर तो है, वो तो अपना गुस्सा निकालेगा, उसको तो सब समझ आ रहा है, वो अखबारों में भी देख रहा है। ठीक है, कंपेन इन्होंने कम करने दिया हमें। पुलिस क्या जाती थी, लो जी भागो भागो, यहाँ से 100 किसान आ रहा है, यहाँ से 500 किसान आ रहा है। वही 15-10 गुंडे कांग्रेस के वो हाथों में किसानों के झंडे लेकर आके एक माहौल बनाते थे, किसान आगे किसान आगे। ठीक है राजन जी, हमारे साथ मनजिंदर भुल्लर जी भी जुड़ चुके हैं। मनजिंदर जी, बहुत स्वागत है आपका। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष आपने सुन लिया। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश की मशीनरी का गलत इस्तेमाल का आरोप लगा रही है, चुनाव आयोग पर शक जाहिर किया गया, साफ तौर पर आरोप लगाया जा रहा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। आम आदमी पार्टी की राय क्या है? फिलहाल कल मतदान शुरू हो जाएगा सुबह 8 बजे, और इसको लेकर आम आदमी पार्टी अपनी जीत को लेकर आश्वस्त कितनी है और सरकारी मशीनरी पर कितनी उम्मीद आपको है? बिल्कुल, यहाँ तक जीत का सवाल है तो हम पूरे मन से हमने प्रचार किया है, अपने कैंडिडेट जो म्युनिसिपल इलेक्शन में पार्टी ने उतारे हैं, और हम पुरजोर उम्मीद करते हैं कि वी विल कम आउट विद द फ्लाइंग कलर्स। और दूसरी बात, भाजपा की आइडियोलॉजी से, भाजपा की जो मोडस ऑपरेंडी है, वो कंट्री, ये जो धर्म की राजनीति करते हैं, उससे तो मैं मुतफिक नहीं हूँ।
अगर दैट इज अ डिफरेंट सब्जेक्ट, मैं और भंडारी साहब आज के पैनल में शामिल हैं, तो मजमून यही है कि जो हिंसा हुई है, जो लॉ एंड ऑर्डर का घान हुआ है, जो गवर्नमेंट मशीनरी, जो इलेक्शन कमीशन को जैसे मेरे सीनियर दोस्त ने बोला कि स्पाइनलेस हो गया है, तो आई एग्री विद दैट। ये सभी लोगों ने, अकेले पंजाब में नहीं, अक्रॉस द ग्लोब, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, तो सभी लोगों ने देखा है। जैसे इन्होंने भी स्पेसिफिकली मेंशन किया कि मेरे बिल्कुल नेबरहुड में हमारा फिरोजपुर कॉन्स्टिट्यूंसी और उसके साथ में जीरा और साथ में बिल्कुल गुरुहार सहाय और जलालाबाद, फिरोजपुर डिस्ट्रिक्ट के जो 3-4 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, उनमें से जीरा में तो एक भी नामांकन पत्र भरने नहीं दिया गया। 17 सीटें, ऐसा कभी पॉसिबल हुआ है कि अकाली दल के 17 उम्मीदवार, बीजेपी के 17 उम्मीदवार, आम आदमी पार्टी के 17 उम्मीदवार, बसपा और अदर अन्य जो दल हैं, उनमें से कोई भी व्यक्ति या कोई भी लीगल माइंड या कोई भी लीगल एक्सपर्ट ऐसा नहीं था कि वो एक भी नामांकन पत्र सही नहीं भर सके या भरने उनको आने नहीं दिया गया। और फिरोजपुर में आइडेंटिकली वहाँ 33 वार्ड है और 33 में से 14 नामांकन पत्र आम आदमी पार्टी को भरने दिए गए और ऐसे ही आइडेंटिकली 19 शायद अकाली दल को और 8 या 10 बीजेपी को। और आइडेंटिकली हैपेंड द सेम सिचुएशन इज इन द गुरुहार सहाय एंड जलालाबाद में जो साबका हमारे डिप्टी मुख्यमंत्री थे सूबे के सुखबीर सिंह बादल, उनके कैबिनेट पर जो हमला किया गया। और तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अकाली दल और बीजेपी को क्लीन चिट दे रहा हूँ, क्योंकि पहले भी बहुत सारी डिबेट्स में मैंने ये बात कही है, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे रखी है कि ये जो बीज बोआ गया है ये अकाली दल बीजेपी की सरकार का ही है। अगर आप 97 से पहले के चुनाव देखें, फाइट होती थी नेक टू नेक, हर तरह का छोटा मोटा झगड़ा भी हो जाता था इलेक्शन में, क्योंकि रणजीत सिंह आर इनएविटेबल पार्ट एंड पार्सल ऑफ द डेमोक्रेटिक सेटअप के चुनाव में थोड़ा बहुत कहा सुनी हो गई, कहीं झगड़ा हो गया, एक आध घटना घट गई, मगर आप देखिए मोगा में दिन दिहाड़े 2 लोगों का कत्ल हो जाता है और कैप्टन अमरिंदर सिंह और उनके जो स्पोक्स पर्सन प्रवक्ता है वो बोलते हैं कि छोटी मोटी घटनाएं हो जाती हैं। 2 आदमियों का मारे जाना, वो भी म्यूनिसिपल इलेक्शन में, इनके लिए छोटी मोटी घटना है। तो और अकाली दल बीजेपी के रजीम में भी यही होता रहा है। अमृतसर में अभी अगर भंडारी जी बोल रहे हैं कि हम तो उसमें शुमार नहीं थे, अकाली दल गुंडागर्दी करता रहा है। पहले भी हम एक पैनल में शामिल थे तो तरन से बीजेपी अकाली दल अलायंस के एमएलए थे, मिस्टर अनिल जोशी संसदीय सदस्य थे, तो अकाली दल के गुंडों ने उनकी गाड़ी को पजेरों को आग लगा दी, सड़े इस पर मैं भंडारी जी तो या तो बीजेपी तब स्टैंड लेती है कि भारतीय जनता पार्टी और शिरोमणि अकाली दल जब सत्ता में थे तभी ऐसी स्थिति थी। इस पर मैं भंडारी जी से जवाब लूंगा, लेकिन ठीक है बुल्लर जी, ठीक है। लेकिन बुल्लर जी सवाल यहाँ पर यह भी है कि कल जब जनता मतदान के लिए निकलेगी तो उससे आम आदमी पार्टी को उम्मीद कितनी है, क्योंकि जो नामांकन खारिज होना था वो तो हो गया, अब जितने प्रत्याशी आपके मैदान में हैं उनके लिए आम आदमी पार्टी को उम्मीदें कितनी है और कौन कौन से मुद्दे आप देख पा रहे हैं जिन मुद्दों पर आम आदमी पार्टी के पक्ष में कल मतदान होने वाला? 100% और जो आपने बाकी जो हमारे स्टेट के इशू या नेशनल इशू और दूसरे जो है मुकामी इशू, जो मुकामी इश्यूज हैं जिनको हम लोकल इश्यूज बोल देते हैं, वो तो अगर मैं अपने शहर की बात करूं तो ड्रिंकेबल वाटर 73 ईयर्स हो गए पार्टीशन को, सो कॉल्ड इंडिपेंडेंस को, तो अभी तक ड्रिंकेबल वाटर ही जो है लोगों तक नहीं पहुंच पाया। और जो बेसिक अमेनिटीज हैं, स्ट्रीट लाइट का हो गया, टाइट का हो गया, और जो सीवेज सिस्टम है 50% में तो सीवेज सिस्टम है ही नहीं, जिस 50% में है आप किसी भी शहर में चले जाइए पंजाब के, यहाँ कहीं भी सीवर पड़ा हुआ है, वो जो 2 से 3 फीट के इन्होंने जिसको पंजाबी में पूरे बोलते हैं और इंग्लिश में हम पाइप बोलते हैं, सीवेज पाइप लाइन, या ये जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जिनको WTP बोल देते हैं, जो अकाली दल बीजेपी रजीम ने लगाए थे, तो उनका जो मटेरियल है दैट वाज आल्सो सब स्टैंडर्ड। और इस गवर्नमेंट का तो पंजाबी में जिसको बोलते हैं कि भट्ठा ही बैठ गया है, इन्होंने तो भट्ठा ही बैठ गया हुआ, इन्होंने व्हाटएवर हैव बीन डन बाय द लास्ट प्रीवियस गवर्नमेंट उसको फर्गस में भी रखने में ये बिल्कुल नाकाम साबित हुआ है। और कैप्टन अमरिंदर सिंह की जो लीडरशिप है, जो उनकी क़यादत में सरकार है, दैट इज टोटली इनकम्पिटेंट। और अगर एक लास्ट मेरा टेक ले लीजिए, जो स्टेट इश्यूज हैं कि कांग्रेस गवर्नमेंट ने कहा था कि घर घर में नौकरी देंगे, खर्चा तुर्की खत्म कर देंगे, फसल की पूरी रकम दे देंगे, और कोर्ट क्लिनिक खोले इन्होंने ड्रग को खत्म करने के लिए, डेपो प्रोग्राम लेके आए, ड्रग अब्यूज प्रिवेंशन ऑफिसर,
और ये जो गुटका साहब को हाथ में पकड़कर तख्त श्री दमदमा साहब में इन्होंने वादा किया संगत के साथ गुरु साहब की मुकद्दस एंटिटी को हाथ में लेकर के नशा खत्म करने के, तो तमाम ऐसे इश्यूज हैं और लॉ एंड ऑर्डर की जो हालत है वो तो आपके सामने ही है। ठीक है भंडारी जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ, लोगों के पास आप ठीक है बुल्लर साहब, मैं लौटता हूँ। ठीक है भंडारी जी, मेरा सवाल आपसे है, आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के पास बड़े वकील हैं और नामांकन भरना एक हमारी सतत प्रक्रिया है, बड़ा काडर आपका है, लेकिन ये वकीलों के जरिए क्या आप इन नामांकन खारिज करने के जो फैसले तो उनको चुनौती देंगे? पहला सवाल ये। दूसरा, जिस तरह से खुद देश की संसद में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने इस बात का जिक्र किया कि कृषि कानूनों का असर एक राज्य में है सिर्फ, तो कम से कम इतना माना जाए कि पंजाब में तो असर है, बीजेपी भी इस बात को जानती है। क्या उम्मीद है बीजेपी को कि किसान आंदोलन का असर, कृषि कानूनों पर जो लगातार विरोध का सुर पंजाब में उठा है, उसका असर जनता अपनी नाराजगी जो है वो इस चुनाव के जरिए नहीं दिखाएगी? इसकी उम्मीद बीजेपी कितनी कर रही है? देखो, जो आपका पहला प्रश्न है कि हमने इलेक्शन कमीशन को लगभग 40 से 50 रिप्रेजेंटेशन भेजी है 10 दिन के कैंपेन में, इसके साथ डीजीपी को भेजी है, इसके साथ हम खुद, मैं भी साथ था, गवर्नर साहब को हम मिलकर आए हैं, बताकर आए हैं, इंस्टेंसेस देकर आए हैं। इसलिए हमने तो अपनी तरफ से जो बनते कदम थे वो उठाए, यही हमारे में हाथ में था, इसलिए हमने वो किया। अब कोर्ट में हम जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, वो प्रोसेस भी लगभग शुरू हो गया, हमारे लोगों ने करना शुरू कर दिया। लेकिन कोर्ट का जो इंटरफेरेंस है, या कोर्ट उस समय आती है जब इलेक्शन प्रोसेस पूरा खत्म हो जाता है, जब एक बार शुरू हो जाए। तो पहले भी हमने किया, उसके कारण कोर्ट में हम गए थे, एक जगह फगवाड़ा में इन्होंने वोटों की गड़बड़ की थी, कोर्ट ने हमें इलेक्शन प्रोसेस शुरू होने से पहले स्टे दे दिया, तो वो रुक गया चुनाव। अब इनका जो होगा वो बाद में होगा। लेकिन कुल मिला के ये है कि जिस तरह से कांग्रेस ने खुलेआम गुंडागर्दी की, वो भी किसानों की। लेकिन आम आदमी पार्टी तो कह रही कि जब आप लोग सत्ता में थे शिरोमणि अकाली दल के साथ, तब भी स्थिति कमोवेश यही रहती थी। देखिए, मैं अब इनको क्या कहूँ, इनको क्या, सारे पंजाब को पता है कि बेसिकली ये वायलेंस की टेंडेंसी किन पार्टीज में है, तो मैं इससे ज्यादा बोलना नहीं चाहता। इतना कहकर बीजेपी जो है वो बड़ी पॉलिश्ड पार्टी है, मैं ये नहीं कहता कि आप पॉलिश पार्टी नहीं है, उसको छोड़िए, लेकिन कुछ पार्टीज का जो बेसिक करैक्टर है, स्ट्रक्चर है, वो वायलेंस के साथ है। उसमें कांग्रेस और अकाली दल आते हैं, सभी को मालूम है। हम अलायंस तो अकाली दल अगर ऐसी ही पार्टी थी तो फिर सत्ता में जब तक आप थे सत्ता की मलाई जब तक मिली तब तक अकाली दल का ये नुक्स नहीं दिखा आपको? नहीं सर, यहाँ पंजाब में धरातल की बातें और हैं। क्वेश्चन राइज होता है लेसर इवल का, कि कौन सा कम इवल है, और हमने पंजाब की शांति और भाईचारे के कारण अकाली दल से समझौता किया था। तो आपका कहना यह है कि अकाली दल कम आपराधिक प्रवृत्ति के अकाली दल के लोग थे, इसलिए आप उनके साथ चले गए, कांग्रेस वाले थोड़े से ज्यादा थे। पंजाब की शांति और भाईचारा लोग चाहते थे, यानी हम ये कहते थे अकालियों के साथ हमारा राजनीतिक जो है गठबंधन नहीं है, ये सामाजिक गठबंधन है। हम अकालियों के साथ। भंडारी जी, मुझे वो तस्वीर याद आ गई जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बादल साहब के पैर छुए थे, वो तस्वीर मुझे याद है, आपको भी यकीनन याद होगी। जब आप इस तरह की टिप्पणी करते हैं तो फिर वो तस्वीर जनता के ज़हन में भी याद आती है। लेकिन मेरा जो सवाल था कि कृषि कानूनों को लेकर जब खुद कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने देश की संसद में कहा कि एक राज्य पर ही असर है, अब कितने राज्यों पर असर है या नहीं ये अलग मसला हो सकता है, लेकिन साफ तौर पर पंजाब में इसका असर है, भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व भी मान रहा है। पंजाब में इस असर का नतीजा जनता की नाराजगी के जरिए इस वोट में, इस नतीजे में नहीं दिखेगा। भारतीय जनता पार्टी को उम्मीद कैसे है इससे? देखिए, ऐसे है कि पंजाब की राजनीति में मोटे तौर पर जो क्लासिफिकेशन है उसमें कुछ शहरी प्योर जो अर्बन एरियाज हैं, प्योर रूरल एरियाज हैं, और कुछ सेमी रूरल एरियाज हैं। जो ये चुनाव हो रहे हैं इसमें प्योर रूरल एरिया में नहीं हो रहे, इसमें अर्बन एरिया में हो रहे हैं या सेमी रूरल या अर्बन एरिया में हो रहे हैं। वहाँ किसानों के जो प्रभाव कह लीजिए वो है, पर इतना नहीं है।
दूसरी तरफ जो समझते हैं कि इन्होंने जो किसानी आंदोलन की आड़ में गुंडागर्दी की है उसमें कोई भी एलिमेंट हो, और जिस तरीके ने कांग्रेस ने इस आंदोलन को अपनी कमियां, अपनी त्रुटियां, अपनी कमजोरियां छुपाने के लिए जो इस्तेमाल किया है वो भी लोग समझते हैं। बुल्लर साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। वो चुनाव में आएगा। ठीक है बुल्लर जी, आपका कहना कि स्थानीय मुद्दे भी एक बड़ा फैक्टर होने वाले हैं चुनाव में, जो सीवरेज की व्यवस्था हो, साफ जल की व्यवस्था हो, तमाम व्यवस्थाओं को भी जनता अपने लेवल पर चुनेगी और उस हिसाब से भी वोट करेगी। लेकिन जिस तरह से पंजाब में कृषि कानूनों को लेकर आक्रोश दिखा है, क्या वो आक्रोश बीजेपी के खिलाफ जाएगा? इसका असर देखा जा सकता है। और बीजेपी के खिलाफ अगर जाता है, शिरोमणि अकाली दल के खिलाफ एक बार को फर्ज करे जाता भी है, तो वो कांग्रेस के पक्ष में नहीं जाएगा, इसकी उम्मीद आपको कैसे है? ये बहुत आपका रेलेवेंट सवाल है जी। पर भंडारी साहब बड़े नेता हैं तो शब्दों का खेल इन्हें अच्छे से खेलना आता है। आपके सवाल का गोल मोल जवाब इन्होंने दे दिया। पहली बात तो ये कि तस्लीम किया है संसद की फसील पर खड़े होकर माननीय प्रधानमंत्री ने और कृषि मंत्री ने कि इसका असर पंजाब में है। दूसरी बात, अगर हम पहले 2 एक्ट जो प्राइस एश्योरेंस का और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का है उसको छोड़ भी दें, तो तीसरा एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट एक्ट जो 2020 है, 1955 वाले एक्ट में जो अमेंडमेंट किया गया है प्रावधान, तो वो तो सभी की जिंदगी से डायरेक्टली वाबस्ता है। जिसके घर में चूल्हा है, असर जो है वो बीजेपी के खिलाफ जाएगा। मैंने सवाल आपसे इसीलिए किया कि फर्ज करिए बीजेपी के खिलाफ ये जाता है, तो कांग्रेस के पक्ष में नहीं जाएगा, आम आदमी पार्टी के पक्ष में कैसे जाएगा? ये उम्मीद कहां से आपको? जी, वो सीधे सवाल का जवाब यही है कि बीजेपी और अकाली दल ये तो हैंड इन ग्लव्स से अलायंस था, और 14 सितंबर तक सरदार सुखबीर सिंह बादल और उनकी धर्मपत्नी जो साबका कैबिनेट मिनिस्टर है वो भी इनके साथ ही थे। 14 सितंबर में जब लोकसभा में वोटिंग हुई और उसके बाद राज्यसभा में विदाउट हैविंग डिवीजन वोटिंग हुई, देन अकाली दल टुक अ यू टर्न। सो ऑल दो बीजेपी और अकाली दल इनके तो खिलाफ लोग हैं ही हैं, और जो सूबे की सरकार है, हमारे प्रांत के माननीय मुख्यमंत्री, जो 22 मार्च के बाद जब लॉकडाउन हुआ पूरे मुल्क में, तब से लेके आज तक 1 साल हो चुका है, 11 महीने हो गए, वो सिर्फ 3 बार सूबे में आए हैं। जो मुख्यमंत्री अपने लोगों को, अपने मंत्रियों को मिलता ही नहीं है और जिसको लॉ एंड ऑर्डर की कोई फिक्र ही नहीं है, और लोग चाहे वो शगन स्कीम हो, चाहे वो जो वेलफेयर स्कीम्स हैं, चाहे वो आटा दाल की बात कर लें, चाहे कोई और जो लोगों के वेलफेयर के लिए बनाई गई स्कीमें हैं, तो सभी बैठ। लेकिन बुल्लर जी, कांग्रेस की तरफ से ये भी लगातार दोहराया जा रहा है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की बैठी सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया कृषि कानूनों को लेकर, जबकि हमने विधानसभा से इसको लेकर कानून बनाए जो इस कानून को बाईपास करे। हालांकि राज्यपाल ने इसे रोक लिया, लेकिन हम इसके लिए प्रयासरत हैं। ये चीज कैसे दिखाएंगे आप जनता को? मैं माननीय जो हमारे एडवोकेट जनरल हैं पंजाब के, मिस्टर अब्दुल नंदा, उनके पास वकीलों की फौज है, और बहुत सारे वकील कांग्रेस पार्टी के स्टालवर्ट लीडर भी हैं, चाहे वो आप नेशनल लेवल पर ले लें, चाहे स्टेट लेवल पर ले लें। और उसके बाद कंट्राडिक्टरी बात देखिए, 24 अक्टूबर को कैप्टन अमरिंदर सिंह स्पेशल सदन कॉल करते हैं और उसमें एक बिल्कुल फॉर्मेलिटी कर देते हैं कि हमने इन 3 कानूनों को रोक दिया। पहली बात तो ये कि अगर आपने पार्शियली उनको रद्द किया है कि एमएसपी लागू होगी, और जो बाहर के व्यापारी हैं वो एमएसपी से कम से खरीद नहीं सकेंगे, और उसमें सजा का प्रावधान कर दिया। मेरा सवाल इतना ही है, जो बारीकी आप समझा रहे हैं ये जनता समझ चुकी है ना, आम आदमी पार्टी के लिए पक्ष में वोट कर देगी ना, ये उम्मीद है ना आपको? बिल्कुल 100%। और मैं आपके सवाल का वो भी जवाब दे दूं कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में, आप बोल रहे हैं, नोटिफिकेशन कर दिया था। जब वहां स्वामीनाथन रिपोर्ट इंप्लीमेंट की गई तो यही बीजेपी, कांग्रेस, अकाली दल वाले बोल रहे थे कि वो तो छोटा सा प्रदेश है, केंद्र शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटरी है, मुट्ठी भर किसान है, वहां तो लागू कर सकते हैं। तो एक तो उसका जवाब ये है कि अगर वो यूनियन टेरिटरी है, छोटा सा प्रदेश है, तो उस पर इतना सवाल क्यों? और दूसरी बात, तो जो नोटिफिकेशन, वो स्पेसिफिकली नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया था, दैट वाज इन द फर्दरेंस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ, जो बाय डिफॉल्ट ही सभी सूबों में लागू होना था। और उसके बाद उसकी कॉपियां टॉर्न अप की गई असेंबली में माननीय मुख्यमंत्री और हमारी पार्टी के जो नेशनल कन्वीनर है उनकी तरफ से, और तब से लेकर सभी लोग, केडर और लीडर आम आदमी पार्टी के नवंबर 25 से लगातार लगे हुए हैं। मैं समझ गया बुल्लर जी, मैं समझ गया। ठीक है भंडारी जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। अब तक आप लोग शिरोमणि अकाली दल के साथ विधानसभा का चुनाव लड़ते रहे हैं, लेकिन इस बार गठबंधन भी टूटा है और आप लोग के रास्ते भी अलग हुए, तलखियां भी दिखने लगी हैं डिबेट्स में भी। अब चर्चाओं में इस तरह से आप लोगों ने कहा ही कि आपराधिक प्रवृत्ति के लोग ये लोग थे अकाली दल वाले,
लेकिन दिक्कत वाली बात यह कि क्या भाजपा का काडर इतना मजबूत है कि अकेले दम पर आप लोग चुनाव लड़ें और उसका नतीजा भी एक बेहतर दिखे, और न सिर्फ इस लिहाज से बल्कि 2022 के लिहाज से भी, क्योंकि 1 साल का वक्त लगभग बचा है विधानसभा के चुनाव में और आपको अपनी तैयारियों को परखना भी है, सेमीफाइनल भी कहा जा रहा है इसे। इस लिहाज से बीजेपी की मजबूती कितनी दिखेगी काडर की, अगर काडर के लिहाज से इसे देखा जाए? देखिए, मैं पहले तो यूसी मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूं कि ये सेमीफाइनल है, क्योंकि जो लोकल बॉडीज के चुनाव होते हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस के दम पे उनको यूज करके अक्सर होते हैं। अब इस चक्कर में नहीं मैं पढ़ना चाहता कि अकाली दल के समय क्या था क्या नहीं, पर इससे हार्ड फैक्ट नहीं, ये तो दिल्ली में भी होता है, वहां भी होता है, सभी तरह आप देखेंगे मोस्टली बाई इलेक्शन कौन जीतता है। मैं बहस में नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन फैक्ट है अब जब जनरल इलेक्शन होंगे तस्वीर एकदम उल्ट होगी। उस समय और एजेंडा होता है और कंडीशंस होती हैं, वो उस समय होगी। लेकिन इस चुनाव में जो मुद्दे रहने वाले हैं उसमें किसानी मुद्दा दोनों तरफ चलने वाला है। दो धारी दल बाहर है, कई पार्टियों को किसानी मुद्दे में लाभ होगा और कई पार्टियों को किसानी मुद्दे में नुकसान होगा, क्योंकि हर तरह के लोग हैं, वो हर तरह से जजमेंट करते हैं। पंजाब की कंपोजिशन थोड़ी सी हटके है। दूसरी बात है, कांग्रेस को जो जवाब नहीं मिल रहे वो ये है कि कांग्रेस और करप्शन सिनोनिमस है, और लोकल बॉडीज में ये बार बार आ रहा है कि करप्शन भ्रष्टाचार बहुत लेवल पे है। डेवलपमेंट वाली चीज ना लोकल बॉडीज में है ना पंजाब में है। तो ठीक है भंडारी जी, सवाल तो फिर यही उठता ना कि अगर लोकल बॉडीज में डेवलपमेंट नहीं है तो जनता सवाल शिरोमणि अकाली दल के साथ साथ आपसे भी पूछेगी कि लोकल बॉडीज में आपने डेवलपमेंट क्या कराया। जब तक आप लोग सत्ता में थे तब तक स्थानीय स्तर पर क्या विकास के काम हुई, जनता इस पर भी तय करेगी। अरे यूसी हमने तो बहुत की, जो हमारे समय की सड़कें बनाई हुई है ये तो दोबारा उससे रिपेयर भी नहीं कर पाए, और हमने जो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया पंजाब ने उसके तो ये नजदीक नहीं जा पाए। हम तो ये कहते हैं, जब हम लोगों के बीच गए तो हमने स्पष्ट कहा कि कांग्रेस को कहो कि जो बकाया है ना, इन्होंने जो लेके आए थे अपना एजेंडा, उसमें जो बकाया, पहले तो वो बकाया हमें दे, उसके बाद जो इनके जो अभी वादे कर रहे हैं। ठीक है, आपका कहना है कि स्थानीय स्तर पर जो विकास के काम आपने किए थे वो जनता को आज भी याद है। लेकिन भुल्लर साहब, अगर भारतीय जनता पार्टी अपने विकास कदम पर भी जनता से उम्मीद रखती है तो आम आदमी पार्टी को कहां से उम्मीद है? क्या बीजेपी और शिरोमणि अकाली दल की जो नाकामियां थी, नाकाफियां थी, उनको आप निशाने पर लेकर रहेंगे? और इसके अलावा पंजाब सरकार के ऊपर लगातार अपना हमलावर है, क्या सिर्फ नाकामियों की बदौलत ही आपको उम्मीद अपनी कामयाबी की है? जी, पहली बात तो ये है कि हमारी जो पार्टी का कॉन्स्टिट्यूशन है और जो मोडस ऑपरेंडी है, मोड ऑफ ऑपरेशन है, वो हम हेल्थी पॉलिटिक्स करते हैं और पॉजिटिविटी से चलते हैं कि ये नहीं कि ये गुंडे हैं तो हम इससे बड़े गुंडे हैं। दिस इज नॉट आवर टैगलाइन। हम तो शरीफ लोगों को, एजुकेटेड लोगों को, जो कॉम्पिटेंट लोग हैं उनको पॉलिटिक्स में लेके आने का एजेंडा है आम आदमी पार्टी का, पहली बात। और दूसरी बात, ये जो बीजेपी और अकाली दल और कांग्रेस ने किया है, अब 2 एग्जाम्पल मैं दूंगा। पहली बात कि 1997 में 82,000 करोड़ का कर्जा था। ठीक है, मेरे पास मनजिंदर जी वक्त कम है, जल्दी से बताइए कि कामयाबी आपकी क्या होगी? आप किन कामयाबियों की बदौलत चुनाव लड़ रहे हैं, या सिर्फ भारतीय जनता पार्टी, शिरोमणि अकाली दल और कांग्रेस की नाकामियों की बदौलत ही अपनी कामयाबी की उम्मीद आपको है? नहीं, हमारे पास तो 2 चीजें हैं। एक तो दिल्ली में डेवलपमेंट मॉडल देखिए, 3 बेसिक चीजें होती हैं, एजुकेशन, कम्युनिकेशन और हेल्थ। दिल्ली में आप तीनों चीजों पर जो काम हुआ है वो आप देख सकते हो। और उसके अलावा हम तो एक सुपना, हसीन सपना दिखा सकते हैं, और उसको कागज पर उलीकने के लिए और प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट करने की क्षमता हम लोगों में है। ठीक है, वो दिल्ली में ठीक है भंडारी जी, बहुत छोटा सा जवाब, 20 सेकंड मेरे पास है, वक्त कम है, जल्दी से भंडारी जी वो सभी कहिए। ये ऐसे है यूसी, ये आप वाले चलो जो कहते हैं इनको मुबारक, ये जब भी बात करेंगे दिल्ली की करेंगे। हम पंजाब में लड़ते हैं, हम गुजरात की बात करते हैं, हम मध्य प्रदेश की बात करते हैं, हम हिमाचल की बात करते हैं, हम पंजाब में बैठकर पंजाब की बात करते हैं। पंजाब का अपने प्रॉब्लम है, अपना एजेंडा है। चलिए ठीक है, स्थानीय समस्याओं पर जनता वोट करेगी या राष्ट्रीय मुद्दों पर भी मतदान होगा, ये देखना होगा। आप दोनों का बहुत शुक्रिया, भंडारी जी और भुल्लर जी, आप इस चर्चा में शामिल हुए, बहुत शुक्रिया। तो कल मतदान का दिन है, निकाय चुनाव का दिन है, सुबह 8 बजे मतदान भी शुरू हो जाएगा। इंडिया न्यूज की तरफ से गुजारिश भी है कि अपने मताधिकार का इस्तेमाल जरूर करिए और एक जिम्मेदार नागरिक का फर्ज निभाइए
लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह है कि क्या स्थानीय चुनाव में जो राष्ट्रीय मुद्दा किसान आंदोलन का मुद्दा बना हुआ है, कृषि कानूनों का मुद्दा है, उसका असर पड़ेगा। और सत्ता का सेमीफाइनल से कहा जा रहा है, यानी कि 1 साल बाद जब विधानसभा का चुनाव होगा उससे पहले सियासी पार्टियां अपनी मजबूती को भी लगातार परखने की कोशिश कर रही हैं। कौन कितना मजबूत होगा और किसकी किस्मत जागेगी, ये 17 फरवरी को नतीजों के साथ इंडिया न्यूज आपके सामने रखेगा। फिलहाल इजाजत दीजिए।